bird's eye view of Lakshmangarh, which is Govind Singh Dotasra's hub and his stronghold. And this is the very famous Lakshmangarh fort. And the big thing about this fort is cut out of many small rocks and a perfect location as far as Hindi movies or Bollywood movies are concerned. You know, Dotasra was really in the eye of the storm because of the paper leak case. There was a ED ka chhapa also at his residence and in his offices. But does that really make a difference? Subhash Singh ji is with us at this point of time. आइए सुभाष सिंह जी, मैं आपसे यही पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि इनके खिलाफ आपको लगता है ये जीत जाएंगे यहाँ से? जीत जाएंगे साहब। लेकिन ईडी का केस हुआ, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, उसका कोई फर्क पड़ता है? किसके? गोविंद सिंह दोतासरा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ये केस झूठे जबरदस्ती लगा देते हैं, उसको क्या करेगा? जबरदस्ती लगा दिए गए उनके खिलाफ। हाँ, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो आई डोंट थिंक ही इज। आप भी यहाँ पे पेपर लीक वाला केस के लेके दोतासरा जी पे आरोप लगे हैं, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि वो केसेस नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा उसको फर्क, कोई नहीं, उसमें फर्क नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम किया है उन्होंने, काम किया है, एक नंबर का काम किया है, उसी के लोग जनता उसी को वोट देगी। Okay, so that's the way it goes. Aye, Subhash Singh ji. So that's the way it goes because I've got to just a smattering of three voices, and over here the sense we get is that well, you've heard those voices that Dotasra doesn't seem to be having much of a problem over here. Kaam kiya hai, he's done his work over here, and he's also one of those people who's considered to be extremely close to the Chief Minister Ashok Gehlot, and that's why this becomes a prestigious battle, and that's why it becomes very important that he wins over here with a huge margin, particularly because that's the only way that Congress, not just in a battle for Rajasthan, but even beyond that, can make the point that all these allegations against him and against the Gehlot government and against the Congress party per se are just manipulated. It's a case of political witch hunt. But you just get a view of this entire city over here. Lakshmangarh is a small town. It falls in Sikar district. And the irony is that the paper leak allegations on him, despite that, I didn't find so many institutes over here. But, you know, it is very well equipped. There are lots of developments and infrastructure projects which have been made over here. And, well, I mean, so doesn't seem to be much of a problem as far as Dotasra goes from here. दूसरी अपनी आदि आबादियों संबंधित है। माता बहन, आप बताओ, आप वोटर हो और लोकतंत्र जो 1800 करोड़ को विकास करे बिन वोट देने में थे, हम सब लोग कांग्रेस में थे, पुरानी कांग्रेस ही है। पर न्याय है कि करना है अन्याय के महिलाओं के लिए आप बाहर निकले, चाहे कोई काम निकले, कमाबा निकले, खेत में जा और बिल्कुल पधारो, वेलकम। तो उन्होंने कहा मैं राम और आप लक्ष्मण। अब आर कोई छिपो अजय सिंह को मनियारा जिला छोड़ रही हूँ और मेरे गाय ने चारों गुण गाल सी छोरा अजय सिंह स्कूल के आई। महिला मुखिया है ना, बी के खाते में साल का 10 कोई बहन बेटी कोई भतीजी और आ जाने। और हाँ, इस चीज को प्रचार थाने भी करना है कि जरूरी समझो। इसके अलावा जी बात नहीं करी और आपको एक ही बात कही थी कि कांग्रेस को ईमानदारी से वोट दो, जीता हो, और 25 में से 25 नहीं जीते तो वो नहीं जीते। और वापस कड़वा शो हरिपुरा भी सनवा गिरनिया छोटा गिरनिया माधोपुरा जुड़िया सर एकदम लास्ट कोने पर जुड़िया सर कड़े प्रवेश करो बोरिया की डांड सर जैसा कुड़ी छोटी के दिन आपने साहब की विधायक जी की गोविंद डोटासरा की नामांकन रैली ही 20 दिन में पैदल ही फ्री है। कोई भी बूढ़े बुजुर्ग माए शायद आप में से बहुत कम लोगों ने पता आंग मसलता 11 करोड़ रुपया। आप बताओ सवा क्या बीजेपी साहब कांग्रेस में रहूंगा। मेरे ताऊजी भी कांग्रेस। अब राम और लक्ष्मणगढ़ की जोड़ी बना करके 18 में आए, 19 में एमपी की टिकट में मैरिया जी को दी, उस टाइम भी आए। A round of applause and gives a confidence to Dotasra that despite all the controversy which he or Ashok Gehlot may be mired in, it should be a cakewalk for him. As we travel through Lakshmangarh, which is his area, it just goes on to show that there seems to be a lot of infrastructural development, and that gives hope to him that he's going to bounce back. उसकी जांच कराऊंगा और मेरा विजन है
जांच तो भाई जी 25 तारीख में 6 बजे पैन में सही गए तो ऑर्डर चलसी आज जनता है मुझे पेपर लीक का दोषी बताया, इतना ही करो, मुझे रावण बताया, मुझे कंस बताया, करो बस। पता नहीं क्या क्या बताया। मैरिया साहब, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। छोटा सा कमजोर नहीं है, एक मास्टर का बेटा, एक किसान का बेटा है। अगर इस लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक ठेकेदार, एक थानेदार, एक अधिकारी, एक नागरिक, एक भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि गोविंद डोटासरा ने किसी भी काम के लिए, रिश्वत की बात तो छोड़ दीजिए, उसके लिए तो कह ही नहीं सकता, अगर कोई काम भी 100 रुपए का बता दिया हो तो जिंदगी में एक वोट मत देना। एमपी कोटे में 10% लगता था, सबको पता है, पूरे जिले को पता है। तो ऐसे लोग मेरे लांछन लगाने की चेष्टा करते हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, अगर गोविंद डोटासरा ने 15 साल में सांपू हो चाहे पंचायत हो चाहे लक्ष्मणगढ़ हो, अगर काम किया है तो भाई जी और टोपला घड़ा ही उड़ा दिया, अपना टोपला को गोविंद डोटासरा को है। I'm waiting for a bite. If that bite happens, I'll do a live. Otherwise, let's do a phone. ठीक है, 10 मिनट है ना अभी। बात है, मैं दूसरी बात कह, तो गांव का कर दे भाई जी, 25 तारीख में 6 बजे पहली ये मेरे शपथ पत्र के लिए कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं कहा पत्रकारों, मैंने कहा क्या कह रहे हैं, क्या आपने प्लाट खाली दिखा दिया शपथ पत्र में? मैं कि नगर परिषद का मायने ऑडिटर लागे है, सफाई कर्मचारी लागे है। मेरा शपथ पत्र मेरी मर्जी है, जो भरूं, आपको कानूनी अधिकार है, जो करना करो। अरे अपना शपथ पत्र मैं काटवा लाग गया, मैं तो धनिया को वकील हूं, मैं तो फुआरा बेचड़ा है। काम तेरा सांतरा किससे काम किया सांतरा, काम किया सांतरा, अब से डोटासरा बन जाए जो 25 तारीख ने 1 नंबर के ऊपर 1 नंबर। दूसरी गारंटी, The man of the moment, Mr. गोविंद सिंह डोटासरा। मैं लक्ष्मणगढ़ घूमी हूँ, बहुत लोगों को मैंने इस बारे में पूछा, जो ईडी का केस और रेड हुआ, उनका कहना है आपने बहुत काम किया है उनके लिए और कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको भी ये विश्वास है इन लोगों में? 100% है। इनके विश्वास पे ही राजनीति करता हूँ, इनके विश्वास से ही जीतता हूँ, इनके मदद से जीतता हूँ और ईमानदारी के साथ में काम करता हूँ। मेरे क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में कोई एक नए रुपए के लिए किसी की कोई बात मेरे लिए नहीं कह सकता। मैंने इनको सबसे पहले कहा था कि आपके दामन पे, लक्ष्मणगढ़ के दामन पे दाग नहीं लगने दूंगा। ये सब साजिशें हैं और साजिशें इसलिए 2.5 साल बाद में इनको ईडी याद कैसे आई? रीट पेपर ऐसे कि 200 लोग जेल में बैठे हैं, तो उसके बाद में गोविंद डोटासरा के घर क्यों आए? और गोविंद डोटासरा के घर आए तो गोविंद डोटासरा से जांच क्यों नहीं की? उसके बयान क्यों नहीं लिए? क्या गोविंद डोटासरा का उस केस में नाम है क्या? तो ये सब साजिश रची गई थी। ये मैरिया साहब और राजेंद्र जी राठौड़ साहब दिल्ली गए थे, उसके बाद में मेरे यहाँ रेड हुई है। मैं समझता हूँ कि इस रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जनता और ज़्यादा मजबूत हुई है, मेरे और ज़्यादा मत बढ़े हैं और ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से आशीर्वाद दे करके विकास को वोट देंगे लक्ष्मणगढ़ के लोग। बीजेपी का कहना है ये तार आप तक पहुंचती है और आपके जरिए मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। बीजेपी तो फिर बैठे क्या कर रहे हैं? वो गोविंद डोटासरा तो खुला घूम रहा है, मुख्यमंत्री भी खुला घूम रहा है, तो तार जोड़ जाड़ के नक्की क्यों करने के? इतने कमजोर है क्या दिल्ली की सरकार है कि अगर मैं गड़बड़ होता, मेरे पे कोई लांछन होता, मेरे कोई तार जुड़े होते तो मेरे को बख्श देंगे? है ये तो जिसका कुछ नहीं होता उसको भी अंदर कर देते हैं। तो आज जो आदमी दोषी हो और इनको पता लग गया, ये सब साजिशें 2.5 साल से सरकार को बदनाम करने की रची जा रही थी और उसी का हिस्सा है। अब चूंकि मेरे सामने सुभाष जी मैरिया साहब आ गए जो इस काम में माहिर हैं, ऐसे काम कराने में। राठौड़ जी को भी आपने चुनौती दी थी कि मेरे खिलाफ लड़ो यहाँ से।
नहीं, मैंने कहा था चूरू से लड़के बताओ, मैं हिम्मत है तो। यहाँ से तो वो लड़ ही नहीं सकते, यहाँ तो जमान जब्त हो जाती। मैंने कहा चूरू से लड़ना, आप जहाँ से 7 बार 6 बार चुनाव लड़े हो, वो नहीं लड़े, भग गए, भगोड़े हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हो, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। मैं जानती हूँ कि ट्रूस की बात की जाती है, बात ये भी की जाती है कि साथ साथ है, लेकिन चुनाव के अभियान में, कैंपेन में वो तो साथ साथ अभी तक दिखे नहीं। सब साथ हैं हम, ये आप गलतफहमी मत रखो। हम सब साथ हैं, यूनाइट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से कैंपेनिंग करते हैं, सब लोग साथ में कैंपेनिंग करेंगे आगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्योंकि आपके पास भी एक चिट्ठी गई है कि सचिन पायलट को बुलाया। प्रियंका जी के साथ जो भी मीटिंगें हुई है, हम सब साथ थे। झुंझुनू में, अरडावता में हम सब साथ थे, आगे हम सब साथ हैं। तो अगर कांग्रेस जीतती है तो अशोक गहलोत ही बनेंगे मुख्यमंत्री फिर से? जीतती है तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, विधायकों की राय लेकर के वो मुख्यमंत्री होगा। तो अशोक पहले गहलोत से कोई तय नहीं है, कोई तय नहीं है। जब पार्टी आलाकमान ने कह दिया कि हम लोग चुनाव लड़ने के बाद में विधायकों की राय से पार्टी आलाकमान तय करेगा, तो वो जो पार्टी आलाकमान तय करेगा विधायकों की राय से वही मुख्यमंत्री तो आखिर में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष अगले कुछ दिनों में धुआंधार यहाँ पे प्रचार करेंगे। डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं, काय का डर, उनसे काय का डर है, वो तो कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं ना। वो तो अब यहाँ राजस्थान में यहाँ की बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वन वे चल रही है हवा, कांग्रेस की सरकार फिर आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो हाथ पैर मारेंगे, लेकिन मिलना कुछ नहीं है उनको।